تو میری زندگی میں آ اور اے خدا تو اپنے عجلو کے وسیلہ سے میرے بندر اور جھولے یسوع کے نام سے توڑ ڈال اور اے خدا پاک خدا آج کا کلام جو میری زندگی کے لیے ہے تو نے آج کا کلام اپنے خادم کے منہ میں رکھ دیا تاکہ خدا جب تیرا خادم ہم سے ہم کلام ہو اور وہ نہ بنے بلکہ تیرا پاک اس میں سے ہوकर بولے اور سننے والی زندگیوں پر سب اور نجات کی زندگی پائے آج کا کلام پڑھتے رہو کہ یہ بھائی سے بڑھ کر خدا خدا کیونکہ تیرے کلام میں لکھا کہ جب تیرا کلام کھلتا تو تیرا حکم کھل جاتا ہے خدا خدا اسی طرح آج تیرا کلام جو ہم زندگیوں میں کھلے ہوئے اے خدا خدا تیرا منہ کھلے تو بھر کر دے خدا خدا ہمیں اپنے چنار میں اپنے پان کیا کرنے کی مدد طاقت ہے خدا خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم بہت سی زندگیوں کا جیتنے کا امتیاز حاصل کریں اور اس کلام کا سارا عزت جلال مانر تجھے تیرے بیٹے یسوع کے نام کرے خدا خدا ہم تیرے قدم کو تیرے ہینڈ کرتے ہیں تو اسے چھونا پاک کرنا بلیس کرنا اپنے چنار کے لیے اپنے پان کے لیے قصد سے استعمال کرنا تاکہ جب ہم سب کے ساتھ ہم کلام ہو اور بولنے والا ہونا پھر کہ تیرا پاک اس میں سے اوپر بھلے اپنے قدم پر منظور بھی ترتیب دینا تاکہ تیرے قدم پر منہ سے نکلنے والا الفاظ تیری مرضی کے مطابق ہو اور تیرے منہ سے بھی کہا خدا تاکہ سننے والی زندگی اپنے سے اور نجات کی زندگی پائے اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم بہت سی زندگیوں کا جیتنے کا امتیاز حاصل کریں تاکہ سارا عزت جلال بنا تجھے تیرے بیٹے یسوع کے نام سے میرے باپ تم سب کو چنا پا کرنا بڑی برکت دینا جو کچھ مانگا سب کاریا مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین اور بتا دیں کہ خدا کے کام کو خدا کے قدم کو آپ سب کی زوردار تعلق خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو خدا ہر روز ہمیں نئی خوشیاں عطا کرتا ہے اس بات کے لیے زوردار تالیاں کیونکہ جب ہم کلام خدا کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے ہر پل ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کبھی ہمیں تنہا حالات نہیں چھوڑتا بلکہ لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے آمین سو بعض دفعہ ہمارے اپنے کام یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا ہمارا چلنا پھرنا ایسا ہو جاتا ہے کہ جو خدا کو پسند نہیں آتا اور اس کے عوض کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری برکات جو ہے وہ رک جاتی ہے لیکن خدا جو ہے وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرتا کہ ہماری برکات جو ہے وہ رکے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر روز نئی خوشیاں حاصل کریں ہاللویا لیکن یہ کس کے سبب سے ہے ہمارے اعمال کے سبب سے ہے کہ کئی بار ہماری برکات جو ہے وہ رک جاتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے میرے ساتھ نکالے خدا کی زندگی بخش کلام مقدس میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب یرمیہ کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی 4 سے 6 آیت تک ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے 4 سے 7 نمبر آیت تک صبح مشمین سے گزارش ہے وہ بڑے ہو کر ان آیات کو 4 آیات تک کو تلاوت کریں 4 سے 7 آیت تک خدا کے مقدس کلام یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اس کی 4 آیت سے کلام مقدس میں یہ مضمون ہے اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندان خداوند کا کلام سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بطلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا اور بیابان اور بقیرہ اور گڑھوں کی زمین میں سے خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے جہاں سے نہ کوئی تھا اور نہ کوئی وہ جو واش کرتا تھا ہم کو لے آیا اور
और मैं तुमको बागों वाली जमीन में लाया एवं उसके मेवा और उसके अच्छे फल को, लेकिन तुम दाखिल हुए और तुमने मेरी जमीन को नापाक कर दिया और मेरी मिरास को मकरूह बनाया। खुदा के पास लौट पड़े और चले जाने पर खुदा के पास करते। आमीन आमीन। यहाँ पर जब हम कलाम खुदा की रोशनी में देखते हैं तो यिर्मयाह नबी का सहीफा जो है, इसके अंदर ये बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है कि अहले याकूब और अहले इस्राइल के सब खानदानों क्या करो, खुदावंद का कलाम सुनो। इसमें सबसे जो बड़ी बात हमें नजर आती है वो है सुनने के लिहाज से, कि इस्राइल के घरानों और याकूब के घरानों खुदावंद का कलाम क्या करो, सुनो। हम किसके घराने से हैं? कितने लोगों को पता है किस घराने से हमारा तलक है? बनी इस्राइल के घराने से। तो हम जब देखते हैं, हम दुआ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अक्सर लोग इस सवाल का इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा तू हमें क्या कर, मुआफ कर, में बरकत दे। सो जब हम याकूब के घराने के साथ तल्लुक रखते हैं, इस्राइल के घराने में से है, तो फिर हम क्या है, वादे के फर्जंद है। फिर हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो वादे जो है खुदा पूरे करने की कुदरत रखता है। लेकिन अगर उन वादों में ताखीर होती है तो इसका मतलब है कि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है जो रुकावट का सबब बन रहा है। लेकिन जब हम उस गुनाह को तर्क करते हैं तो खुदा मेरे और आपके लिए आसमान के दरीचों को खोल देता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कलाम खुदा में भी लिखा है कि अहले याकूब और अहले इस्राइल के सब खानदानों खुदावंद का कलाम क्या करो, सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझसे कौन सी बेइंसाफी पाई। अब खुदा हमसे क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। इस्राइल के घरानों से सवाल कर रहा है, खुदा याकूब के घरानों से सवाल कर रहा है कि तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने कौन सी मुझ में बेइंसाफी पाई है कि तुम और महबूदों के क्या हो गए हो, पैरू हो गए, और महबूदों की पैरवाई करना शुरू कर दी है। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं जितना हमारा ईमान खुदा पर मजबूत होना चाहिए, उस दौर से हम खुदा के साथ मजबूत ईमान के साथ नहीं है। हमारा ईमान जो है वो बिल्कुल नाकिस है। हम थोड़ा सा दुख सहते हैं, थोड़ी सी मुश्किलात आती है तो हम अपने ईमान में डावाडोल हो जाते हैं, हम खुदा के वादों पर शक करना शुरू करते हैं। लेकिन यही यिर्मयाह की अगर जिंदगी पर गौर करें तो ये इतने दुखों के अंदर में से होकर गुजरा, ये कैद खानों में रहा है, ये हत्ता के एक गंदे कुएं के अंदर भी इसको डाला गया, लेकिन ये खुदा के साथ वफादार रहने वाला शख्स है। इसलिए खुदा बार बार उससे कलाम करता। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यिर्मयाह की जिंदगी जो है वो दुखों से भरी हुई है। यहाँ तक उसके दुख बढ़ गए हैं कि वो उस दिन पर भी लानत करने के लिए मजबूर है कि लानत है उस दिन पर जिस दिन पर मेरे बाप को ये खबर पहुंची कि तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। लानत है उस इंसान पर जिसने मेरे बाप से कहा कि तेरे घर में बेटा पैदा हुआ, क्योंकि यिर्मयाह जो है वो अपने दुखों के सबब से इतना परेशान हो गया, इतना वो मुसीबत के अंदर है कि वो उन्हीं दिनों उन्हीं मुबारकबादियों पर क्या करता है, लानत करता है। लेकिन फिर भी खुदा उसके साथ है, क्योंकि खुदा ने कहा कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे क्या करूंगा, जवाब दूंगा। जब वो कैद खाना के अंदर सेल में बंद था तो खुदा ने यिर्मयाह से कलाम करके कहा कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे क्या करूंगा, जवाब दूंगा। और वो गहरी बातें जो तू नहीं जानता वो मैं तेरे लिए नाज़िल फरमाऊंगा। हालेलुया। तो क्या आज हमें जो है वो इन गहरी बातों को जानने की जरूरत नहीं है? क्या हम दुख जो उठा रहे हैं, परेशानियों के अंदर है, मुश्किलात के अंदर है, तरह तरह की आजमाइशों के अंदर है, क्या हमें इस भेद को जानने की जरूरत नहीं है? क्या हम इतने इल्मदार बन गए हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है कि खुदा की मदद को हम मांगे?
यहाँ पर यिर्मयाह जो है वो खुदा पर तवक्कुल करता है, वो भरोसा रखता है खुदा पर और खुदा उसे पता बख्शता। हालेलुया। क्योंकि वो डरता है जहाँ वो मरादी कर रहा है वहाँ पर भी अगर इस यिर्मयाह के सहीफे का मुताला करें तो एक जगह पर वो जाता है जहाँ पर बड़े ताकतवर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, लेकिन वो घबराता है और खुदा उसे कहता है कि तू इस कलाम को अपने अंदर निगल ले और तू इनसे ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और ये कलाम इन्हें तब्दील करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमें इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। डर किस बात का है? हमें सिर्फ और सिर्फ इस्राएल के खुदा का होना चाहिए। हालेलुया। तो जब तक हम खुदा के डर, खुदा के खौफ को अपनी जिंदगियों के अंदर ले नहीं लेते, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। मेरे अजीजों, यहाँ पर कलामे खुदा में लिखा है, ऐ अहले याकूब और अहले इस्राएल के सब खानदानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझसे कौन सी बेइंसाफी पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए। तो क्या आज हम जो खुदा से गिला करते हैं कि खुदा ने हमें ये बरकत नहीं दी, वो बरकत नहीं दी, तो क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं? क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है? क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हम जो दावा करते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं, क्या हमारी जिंदगी इस काबिल है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके? क्या हमारा उठना बैठना चलना फिरना इस लायक है कि हम ये दावे के साथ कह सके कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे? हरगिज़ नहीं है। क्योंकि हम उठते बैठते चलते फिरते अक्सर गुनाह की सद में आते हैं और हम क्या है, हम खुदा के कलाम को उस तौर से जानने की कोशिश नहीं कर रहे जिस तरह तरीके से हमें इसको जानने की जरूरत है। ये कलाम क्या है? हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, लेकिन इस चिराग की हम रोशनी में चलना नहीं चाह रहे, इसीलिए हम अंधेरे में है, हम ठोकरों का बायस है, हम तरह तरह की आजमाइशों के अंदर है, हम परेशानियों के अंदर है, लेकिन फिर भी खुदा जो है वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वो कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता तू किन किन चीजों का मुहताज है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज उन लोगों की जिंदगियों पर गौर करें जिनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, लेकिन हम शुक्र करते हैं खुदा हमें तीनों वक्त रोटी देता। हालेलुया। उन लोगों की जिंदगियों पर गौर करें जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास घरों में स्टॉक पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम खुदा का शुक्र नहीं करते। उन लोगों के लिए उन लोगों की जिंदगियों पर गौर करें जिनके पास खाने पीने पहनने का इंतजाम नहीं, लेकिन फिर भी वो खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उस दौर से खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, क्योंकि हम जो है हम अपने आप पर फख्र करते हैं। हम जो कुछ करते हैं हम कहते हैं हमने अपनी ताकत से किया है, हमने अपने जोर से किया। अगर खुदा हमारे जोर को कम कर दे तो हमारे अंदर क्या है? कलाम कहता है कि तुम कल के लिए फिक्र ना करो, कल का दिन तुम्हारे लिए आप फिक्र करेगा। और ये वादा ना करो कि कल हम क्या करेंगे या परसों हम क्या करेंगे, बल्कि उसकी जगह आज के लिए तुम क्या करो, खुदा का शुक्र अदा करो, क्योंकि आज का दुख आज के दिन के लिए है और कल का दिन जो है वो तुम्हारी मुश्किलात को दूर करेगा और वो बरकत को लेकर आएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आज के दिन के लिए शुक्र गुजारी करना शुरू करना है और आने वाले दिन के लिए खुदा की बरकत को मांगना है, ताकि जो आने वाला दिन है वो ये सारे गमों को समेटे और वो खुशी और शादमानी को लेकर आए। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर इसकी हम 5वीं आयत में पढ़े, खुदा में यूं फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा ने मुझ में कौन सी बेइंसाफी पाई जिसके सबब से वो मुझसे दूर हो गए और बदलान की पैरवाई करके बातिल हुए, और उन्होंने ये ना कहा कि खुदावंद कहाँ है जो हमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया और बियाबान और बंजर और गढ़ों की जमीन में से, खुश्की और मौत के साया की सरजमीन में से, जहां से ना कोई गुजरता और ना कोई बदमाश करता था, हमको ले आया और हमको बागों वाली
जमीन पर लाया ताकि हम उसके मेवे और उसके अच्छे फल खाएं, लेकिन तुम दाखिल हुए तो तुमने मेरी जमीन को क्या कर दिया? नापाक किया और मेरी मिरास को मकरूआ कर बना दिया। आज हम क्या है, खुदा ने हमारे लिए इंतखाब जो है वो अच्छी चीजों का किया हुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं दाऊद की सच्ची नेमतें तुझे अता करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? हमें दाऊद की तरह, मूसा की तरह मजबूत और हमें यिर्मयाह की तरह डटे रहना है। हमें इस ईमान के साथ खड़े रहना है कि आज दुख है लेकिन कल का दिन हमारे लिए खुशी और शादमानी को लेकर आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक हम ईमान के अंदर मजबूत नहीं हो जाते, जब तक हमारा ईमान खुदा पर पुख्ता नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम दावा नहीं कर सकते कि हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएंगे। कई बार हम इस चीज पर गौर करते हैं, हम तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, फिर हम हमारे अंदर ये बात जो है फख्र के तौर पर आ जाती है कि अब हमें कोई भी खुदा की बादशाही में दाम जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीजों, ये एक निशान है हमारे लिए कि हमने मसीह को कबूल किया है, हमारे गुनाह धुले हैं, लेकिन अगर अमाल अच्छे नहीं हैं तो हमारा हाल पहले से बदतर होगा और इससे हम जवाबदेह होंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर कोई तौबा करके दोबारा गुनाह करता है तो वो उस कुत्ते की मांद है जो अपनी कह करके फिर उसको खा जाता है, या उस नहलाई हुई सूरमी की मांद है जो नहला कर फिर दलदल में लौट जाती है। तो हमें क्या करना है? अपने आप को पाक और साफ करना है। जब हम तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर उसके लिए हमें अपने आप को पाक दिल होने की जरूरत है। जब हम इब्तदाई कलीसिया पर गौर करते हैं तो वहां पर जब खुदा के लोग खुदावंद को कबूल करते, वो तौबा करते, पानी का बपतिस्मा लेते, तो वो सब क्या हो जाते? एक जगह जमा हो जाते और वो एक दूसरे के लिए दुआ करने में मजबूत रहते थे। वो बिला नागा दुआ किया करते थे ताकि किसी का ईमान जाता ना रहे। लेकिन हमारा ईमान कहां पर है? हम अपने आप पर फख्र करते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, लेकिन ये उस आदमी का सा हाल है। लुका की अंजील उसके 18वें बाब पर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जहां पर एक फकीर और फरीसी जो है वो हैकल के अंदर दुआ करने गया, तो उसने जाकर अपने खुदा के आगे दुआ करना शुरू की और वो देखता है कि पीछे वसूल लेने वाला जो है वो खुदा के घर की चौखटों पर छाती पीट कर रो रहा है। तो उसने कहा, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ उस वसूल लेने वाले की मांद नहीं हो। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता, अपनी आमदनी में से यकीन देता हूँ, मैं तेरे आयत और तेरे कलाम पर अमल करता हूँ, लेकिन वसूल लेने वाले ने इतना ना चाहा कि अपने खुदा के आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाए, बल्कि लिखा है कि उसने अपनी छाती पीट पीट कर रोना शुरू किया। उसने कहा, देख खुदा मैं गुनहगार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि तेरी हुजूरी में आ सकूं। तो खुदा के कलाम में लिखा है क्योंकि उसने अपने गुनाह का इकरार किया और इसलिए वो खुदा की बादशाही का वारिस बन गया। क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। बजाय कि हम अपनी नेकियों पर फख्र करें, हमें अपनी जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हमें उसकी शर्मिंदगी के लिए अपने खुदा के आगे झुकने की जरूरत है कि खुदा हम जिन रास्तों पर चल रहे हैं तो हमारे रास्तों की छानबीन कर, ताकि हम उन सारे रास्तों को छोड़ें जिनसे तू नाखुश है, ताकि हम तेरी बादशाही के वारिस बन सके। जब हम आंसुओं के साथ बोना शुरू करेंगे तो कलाम हमें सिखाता है जो आंसुओं से बोलते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। तो हमें अपने खुदा की क्या करना है? वफादारी के अंदर आना है। हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेना है, और जब तक हम कलाम खुदा की रोशनी को अपनी जिंदगी के अंदर ले नहीं लेते, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। खुदा ने हमें अच्छी नेमतों के लिए
चुना है, खुदा ने बनी इसराइल के घराने को इसीलिए चुना है ताकि उसके वसीले खुदा का नाम जो है वो सारी रोए जमीन पर मशहूर हो और कौमें जाने के इसराइल का खुदा जिंदा खुदा और वो अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कुदरत रखता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज के इस जदीद दौर के अंदर हम देखते हैं, हम जो इंसान हैं हम अपने दिल की खुशी को पूरा करते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों में मगन हैं, हम खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देना पसंद नहीं करते, हम अपनी खुशी के तालब होते हैं लेकिन हम कलाम को सुनने की हद तक रखते हैं। लेकिन जब तक इस कलाम को सुनकर इस पर हम अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। तो आज हमें अहद क्या करना है कि हमें खुदा के कलाम के क्या होना है, ताबिया होना है, उसकी परवरदारी में आना है ताकि वो वादे जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं ताकि हम बागों वाली जमीन में रहे, हम जमीन के अच्छे मेवे अच्छे फल खाने वाले बन जाए। तो फिर जब ये चीजें हमें खुदा ने अता की है तो फिर हमारा हिस्सा एक पाक और मुकद्दस है, उसको पाने के लिए जरूर है कि हमारा बदन भी पाक और बेऐब होना चाहिए। मेरे अजीजों, खुदावन ने हमें सारी रोए जमीन में से इसीलिए अलग किया है ताकि कौमें जाने के खुदा हमारे साथ है और हम खुदा के लोग हैं। आए हम सब चंद मिनट के लिए अपने अपनी जिंदगी पर गौर करें। सब लोग जो है अपनी जिंदगी पर गौर करें। जिस तरह यिर्मयाह जो है वो जब अपने दुखों पर गौर करता है, अपनी मुश्किलात पर गौर करता है, तो वो अपने खुदा के सामने उन सारी मुश्किलात को रखता है, उन परेशानियों को उजागर करता है। तो आए आज हम जो खुदा के साथ है, अगर आज तक हमने खुदा को कबूल नहीं किया तो आए आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें। अगर हमने खुदा यीशु को कबूल किया हुआ है तो फिर अगर हम पाक रूह से महमूर नहीं है तो आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें ताकि खुदा हमें अपने रूह का लिबास दे। क्योंकि यीशु मसीह ने जब इस दुनिया से उठाए गए तो अपने शिगिर्दों से कहा कि जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना मिल जाए तुम इसी जगह पर ठहरे रहना। तो फिर जब उन्हें रूह का लिबास मिला तो वो खुदा की खिदमत करने में वो आगे बढ़े और खुदा के नाम को जलाल मिला। तो आए हम अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को खुदा से मांगना शुरू करें। अगर हमने खुदावन को कबूल किया है तो फिर हमारा इनाम जो है वो कादरे मुतलक की तरफ से है। उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाए, उसके लिए खुदा के आगे झुकना शुरू कर दे, उसके लिए रोजा दुआ में ठहरना शुरू हो जाए ताकि खुदा हमें पाक रूह जैसी बरकत से भरे ताकि हम जो है खुदा के सच्चे फरजंद ठहरे और हम हर तरह की बदी से बचे रहे, हम हर तरह के गुनाह से दूर रहे और हमारे दिलों के अंदर हमेशा खुदा का डर और खुदा का खौफ हो ताकि खुदा ने जब हमें मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाला है, हमसे वादे किए हैं, तो वो वादे आज हमारी जिंदगियों के अंदर पूरे हो ताकि हम पूरे तौर पर आजमाए जाए और हम पूरे तौर पर पूरे उतरे ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। मसीह खुदा के वसीला से आमीन।